X equal to A, X equal to B. When we have function from closed interval AB to R, means at every point of the interval it is defined, and then another F is bounded. Take any point, there must be some height. At any point, suppose this is T and T belongs to closed interval AB, this Ft is finite. Meaning of boundedness is what? Ft must be some this height. This is T, so this height is what? Ft. Take any two, T1 and T2. This height must be Ft2 and so on. Suppose in this interval, we take maximum or minimum either. Suppose take maximum. So this is maximum. So we define this rectangle. True? And then Ft is that height and T2 minus T1 is this distance. So this is area of this strip. The whole integral process is based over dividing the region into ये discontinuity है. This may be a height here also. तो मेरा मजाक करते हो, तुम समझ रहे सब. ठीक है. This may be height. So even if here it is discontinuous, value must be there because function is defined on closed interval AB. This may be removable discontinuity. Left limit, right limit equal, but value is here. So suppose I take this strip, this is a point. So I'll take this region. So the whole process is based over dividing closed interval AB into subintervals. In each subinterval, we choose maximum or minimum value of function, supremum or infimum of the function, not necessarily maximum minimum, because function need not to be continuous. So maximum minimum may not attained, may not be, but supremum infimum must be there because function is bounded. So over each subinterval, we take supremum and infimum of the function and then try to find these two strips, rectangles. One is smaller than the other with same width, but height wise one is lesser than the other. So we have two strips, say S1 and S2. One is maximum and one is minimum. And then we try to add the areas of these strips. This is more or less the area of that region. X-axis, x equal to A line, x equal to B line, y x-axis, or bound by the function f. Bound by the function f. It is not curve, but bound by the function f. So when we keep on reducing the size, width of strips, this keeps on improving towards actual area. Keeps on improving towards actual area, but the question is whether we are getting the actual area or not. है ना, हमें एक्चुअल एरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी क्लेम द समेशन ए आई वेरी फ्रॉम 1 to n. सपोज द सम ऑफ एरियाज मैक्सिमम मिनिमम को एक चूज कर लिया, समेशन ए आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और यहां इसको कर लिया मैक्सिमम. सिमिलरली समेशन ए आई यहां कर लिया मिनिमम और आई वेरी 1 to n. व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, in fact, when norm p tend to 0, moreover, when the largest length, norm of partition, when largest length of these subintervals, this tend to 0, will imply all the other subinterval, their length is also tending to 0. ये होगा. So when this tend to 0, if these two converges, that means they are, this is the upper limit of actual area, दिस इज द लोअर लिमिट. इससे कम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा, किसी भी स्टेज पे इससे ज्यादा नहीं हो सकता, किसी भी स्टेज पे इससे कम नहीं हो सकता.
In both the cases, these are upper bounds for actual area, these are lower bounds for actual area. आप खुद देख रहे ना, this is sum of these two areas, whereas this is sum of these two areas. So this is always upper bound for actual area, these are for lower bound for actual, if it exists, अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Then when we keep on partitioning or refining the partitions, various partitions, this remains upper bound, this remains lower bound, but it starts decreasing, it starts increasing. Among upper bounds, the least is called supremum. Among lower bound, the greatest infimum. ठीक है, तो इसका infimum और इसका सुप्रीमम, तो जो एरियाज की बाउंड्स है ना, उनके लिए इन्फीमम सुप्रीम काम कर देंगे. एक्चुअल जो एरिया होगा इसके सुप्रीम से कम नहीं हो सकता, इसके इन्फीमम से कम नहीं हो सकता. अब दो क्वालिटी आ गई, एक इन्फीमम और एक सुप्रीमम. तो इसके इन्फीमम को नाम ये साइन दे दिया और इसके सुप्रीमम को ये साइन दे दिया. जो भी आएगा उसको ये बोल दिया गया एफ एक्स डी एक्स ए टू बी. ये नोटेशन है. इसे बोल रहे हैं अपर इंटीग्रल, इसे बोल रहे हैं लोअर इंटीग्रल. ठीक है, अपर इंटीग्रल लोअर. तो एक्चुअल एरिया इन दोनों के बीच में रहेगा. अगर ये इक्वल आ जाए, दैट इज द एक्चुअल एरिया. अलजेब्रिक ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी, क्योंकि नंबर्स हैं, इनका सम है. अलजेब्रिक एरिया की बात कर रहे हैं. तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल है, एंड दैट इंटीग्रल इज डिफाइंड इक्वल. जैसे वही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट. पहले तो ये बात करते हैं, व्हेन बोथ आर इक्वल देन वी से लिमिट एग्जिस्ट, एंड दिस इक्वालिटी इक्वल टू लिमिट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, व्हेन बोथ आर इक्वल देन वी से डिफरेंशिएबल, एंड दैट इक्वालिटी इक्वल टू द डेरिवेटिव. इसी तरह से अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, लेफ्ट यहां पर ये अपर इंटीग्रल है, रीमा लोअर इंटीग्रल है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों को एग्जिस्ट करेंगे. ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, बाउंड अबव हैज टू कन्वर्ज. मोनोटोनिक ये बिलो, ये अबव, they have to converge. So these limits are always there, but their equality need not to be. When they are equal, we say function is differentiable, integrable. Function is integrable. ठीक है, and then this equality, whatever this is, has a notation a to b f x. This that integral of f called algebraic area. ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, और इसके अलावा भी एक टर्म यूज किया था आपने कि अगर ये जो एम आर माइनस स्मॉल एम आर, उसी से बनाया गया ये डेल्टा एक्स आर. इफ दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज बाय चूजिंग सुटेबल पार्टीशन, दैट मीन्स फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दोज पार्टीशंस हुज नॉर्म इज लेस देन डेल्टा. आप कह सकते हो कि ये इससे कम होगा. आप कोई पार्टीशन ले लीजिए, शर्त ये कि उसका नॉर्म क्या होना चाहिए, इस डेल्टा से कम होना चाहिए. आप मुझे और छोटा नंबर दोगे, मैं आपको एक डेल्टा और दे दूंगा. फॉर एवरी एप्सिलॉन इफ आई कैन गिव यू डेल्टा, दैट मीन्स दिस टेंड्स टू जीरो. दैट मीन्स यूपीएफ माइनस एलपीएफ टेंड टू जीरो. बट इफ यूपीएफ माइनस एलपीएफ टेंड टू जीरो, दैट मीन्स अपर इंटीग्रल माइनस लोअर इंटीग्रल टेंड टू जीरो. दैट मीन्स अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल. तो सारी एक मर्ज कर जाती डेफिनेशंस. ठीक है, तो ये ढूंढना पड़ता है. अब जैसा भी हो, अभी हमने कल रिजल्ट लिखे थे कि इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन आर ए बी, है ना. कल 5 रिजल्ट लिखे थे, 4-5 जो भी लिखे थे, 3-4. एफ इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन रीमान इंटीग्रेबल. कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन रीमान इंटीग्रेबल. Even it fails to be continuous at certain point, but the set of discontinuity is finite or countably infinite, then Riemann integrable. ठीक है, बुक में एक थ्योरम और दी हुई है मलिक अरोरा में, अनार गुप्ता में भी शायद, बस बच्चे मुझे मलिक और दिखाई इसलिए मुझे वो याद आ जाता है कि उसमें ये थ्योरम भी दी हुई है कि इफ एस बी द सेट ऑफ दिस कॉन्टिन्यूटी एंड एस प्राइम इज फाइनाइट देन रीमान इंटीग्रेबल. मतलब अगर हम सेट के नोटेशन में यूज करें कि लेट एफ इज डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड पूरे ए बी डिफाइन हो गया, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. देखिएगा, इफ एफ इज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू
आर बाउंडेड, डिफाइन तो सब जगह हो गया, एंड एस इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी माइनस एस. अब पूरे क्लोज, व्हाट इज सेट एस? वेयर दैट इज एस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. ठीक है. देन इफ वन एस इज एम्प्टी, एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, एस इज फाइनाइट. आपने तो ये चलते हैं ना, ठीक है. एस इज फाइनाइट, देन आर ए बी. S is similar to n countable, and वो कह रहा है S प्राइम इज, ये चौथी थ्योरम मिलती है उसमें, S प्राइम इज फाइनाइट. कोई मजाक नहीं है. S प्राइम मतलब यहां पर वो कह रहा है S प्राइम इज सिमिलर टू S n, S प्राइम सिमिलर टू n. इसकी जरूरत है इन दोनों की, ये तो यही हो गया ना. बट ये रिजल्ट्स है, ये तो हम अभी प्रूफ करेंगे, बट इसका से कोई मतलब नहीं रह गया. जब आप कहते हो कि S प्राइम एस एन के सिमिलर है या n के सिमिलर है, तो S काउंटेबल नहीं हो गया. इफ डिराइव्ड सेट इज काउंटेबल, देन सेट हैज टू बी काउंटेबल. प्रूफ किया है ना. द डिराइव्ड सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. ये लिखी है हम लोगों ने शुरू में थ्योरम. डिराइव्ड सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. काउंटेबल सेट का जो डिराइव्ड सेट होता है, काउंटेबल सेट का, वो एम्प्टी, फाइनाइट, सिंगलटन, काउंटेबल, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल सब हो सकता है. काउंटेबल सेट का कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अनकाउंटेबल सेट का डिराइव्ड सेट हमेशा अनकाउंटेबल होगा. फील आ रहा है कैसे होगा? S माइनस एस प्राइम जो है, S माइनस एस प्राइम, अगर S अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल में से काउंटेबल बाहर करते हो तो रिमेनिंग सेट अनकाउंटेबल रहता है ना, कंफर्म. तो अगर S अनकाउंटेबल है, S प्राइम काउंटेबल है सपोज, तो S माइनस एस प्राइम अनकाउंटेबल ही रहेगा. किसी अनकाउंटेबल सेट से, है ना, अनकाउंटेबल सेट से काउंटेबल बाहर करोगे तो रिमेनिंग जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है. तो अगर S मेरा अनकाउंटेबल है, उसके पास मैंने प्रूफ किया था, ये याद है आपको, एस को लिखा था S माइनस एस प्राइम यूनियन S इंटरसेक्शन S प्राइम, ये लिख दिया था. इसमें से अगर हमारा S प्राइम काउंटेबल है, ये जो S इक्वल टू S माइनस एस प्राइम यूनियन S इंटरसेक्शन S प्राइम, ये हमेशा काउंटेबल होता है. दैट इज वी ऑलवेज नो, दिस इज ऑलवेज काउंटेबल. ये हमेशा काउंटेबल होता है S माइनस एस प्राइम. अगर आप S अनकाउंटेबल लेके चल रहे हो तब भी मेरा S प्राइम क्या हो जाएगा? काउंटेबल. लेकिन S माइनस एस प्राइम हमेशा क्या होता है? काउंटेबल. ठीक है, तो ये काउंटेबल है. अगर ये काउंटेबल हो गया तो ये काउंटेबल आ जाएगा. ये हमेशा काउंटेबल है. अगर ये काउंटेबल हो गया तो ये A, बता भी नहीं रहे हो, A यूनियन B, A मेरा काउंटेबल. अगर B काउंटेबल हो गया तो S मेरा काउंटेबल हो जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड. तो अगर S अनकाउंटेबल है तो एक ही चीज आ जाती है, क्या? B को अनकाउंटेबल. और B किस में आएगा? B S में भी कंटेन्ड है और S प्राइम, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन है. तो अगर B अनकाउंटेबल है तो S प्राइम को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा. नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, कि अगर मेरा S प्राइम काउंटेबल है तो S को काउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि S अगर अनकाउंटेबल होता है तो S प्राइम अनकाउंटेबल. नॉट Q इंप्लाइज नॉट P. तो यहां पर इन दोनों केस में ही अगर S प्राइम काउंटेबल है या S प्राइम फाइनाइट है तो S को क्या होना पड़ेगा? काउंटेबल. और वो ये थ्योरम ऑलरेडी हम देख चुके होंगे. ठीक है, बट उन्हें इसको नहीं दिया कहीं पर भी, ये दिया हुआ है.
उस बुक में ये दिया हुआ है और फिर प्रूफ किया गया है एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे इसको प्रूफ किया गया था। तो इसका इस्तेमाल करके यहां पर इसका प्रूफ दिया गया, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हो, जबकि अभी ताजा ताजा था ये, सबसे ये प्रूफ कर रहा था। तो समझ रहे हैं ना? तो कई बार ये पैचेट टोपोलॉजी बड़े काम आ जाते हैं। इस्तेमाल क्या किया गया है, इसको और इस दोनों को कैसे, देखिए ठीक है। ये तो रिजल्ट, तो आपको ये देखना है कि कोई भी सेट जिस पे फंक्शन डिफाइन हो रखा है उसमें फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी का सेट कैसे आ रहे हैं। इफ सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज काउंटेबल, फंक्शन हैज टू बी रीमान इंटीग्रेबल, ऑफ कोर्स बाउंडेड एंड डिफाइंड। सबसे पहले तो देखिए कि एफ डब्ल्यू एल जी, एफ इज इंक्रीजिंग और पी कोई पार्टीशन ले लिया मैंने, कैसा पार्टीशन लिया देखना, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, दिस इज बी, दिस इज ए एंड डेल्टा एक्स आर इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल लेंथ के। अब नॉर्म पी टेंड टू जीरो होना या एन टेंड्स टू जीरो, बात एक ही है, ठीक है, सिंपल। एंड देन ऑसिलेटरी सम जो हमारा आ रहा है एफ पी क्या आएगा, समेशन एफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर। हर सब इंटरवल पे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैक्स, ये इंक्रीजिंग है, ये x1, ये x2, सुप्रीम कहां मिलेगा, यहां, इन्फीम कहां मिलेगा, यहां। अगर इंक्रीजिंग है उस इंटरवल पे, ये तो होने वाला है ना, ठीक है। डेल्टा एक्स ले सकते हैं ऐसे हम। अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्टिक है, इसमें स्टिकली लेके चल थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद जब स्टिकली इंक्रीजिंग होगा तो कांस्टेंट बन जाएगा, वहां वैसे जीरो दे देगा उसको, दिस माइनस दिस इज जीरो। हमें दिखाना है दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज, ठीक। ये एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, ये क्या है, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर, और डेल्टा एक्स आर क्या है, ठीक है। बी माइनस ए तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, टेलीस्कोप, अंदर क्या बचा, एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट प्लस एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, जो भी आया हमारा। आर्किमेड प्रॉपर्टी जो मर्जी कर दीजिए, जिससे चाहे उसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है। सारे प्रूफ्स बुक्स में दिए हैं, हम आपको केवल इलॉबरेट करके समझा दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। नीचे लिख लो प्रूफ आई नो, आई विल सी इन बुक, ठीक है, यहां रखो। यहां ये जो तरीका है, हम कुछ अच्छे क्वेश्चन जो जैसे पॉपकॉर्न हुआ या इनकी एक्चुअली देखेंगे कैसे इन्हें शो करते हैं कि ये रिमार्केबल है प्रॉपरली, जहां पर आपको ऑफसेट के सम दिखाना पड़ता है दिस लेस देन दिस, और या फेल करना सीखेंगे कैसे हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, जहां पर अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल निकालना ही मुश्किल हो रहा है। अगर वो निकल आए तो बस केवल देखना होता है कि भाई इक्वल है। डिरिचलेट में देखा ना आपने, डिरिचलेट फंक्शन में क्या है, अपर इंटीग्रल वन, लोअर माइनस वन, सो नॉट इंटीग्रेबल, साफ दिख रहा है, वहां निकल आए, बट हमें इसमें निकल आएंगे वो। एक कह दू साइन एक्स, एक कह दू कॉस एक्स, अब समेशन साइन एक्स आर डेल्टा एक्स आर निकालो इसका सम और इसकी लिमिट कंडीशन तब अपर इंटीग्रल आएगा। जब रैशनल इरेशनल की बात कर दूं मैं तो थोड़ा सा वहां डिफिकल्ट हो जाएगा। फिलहाल ये क्लियर है, ये तो एक का प्रूफ था, ये कौन सा, मोनोटोनिक वाला। ये वाला देखिए जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड एफ फ्रॉम, जो हमने कल पाथ लिखाए थे उनका प्रूफ ब्रीफ कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे उससे। हाँ, ना भी रिमूवल जंप हो तब भी हो जाएगा। अब देखो देखो ना, यहां पर देख, इस कंटिन्यूटी यहां आ रहा है, फिर फेलियर वाला पॉइंट आ जाएगा, अपने मालूम चल जाएगा, ए बी टू आर देखना, और ये है बाउंडेड। टेक एनी पार्टीशन, पहले तो ये ले एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इक्वल टू बी, ये है। देखिएगा, आपको मालूम है जब फंक्शन क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होता है तो यूसी होता है। नाउ एज एफ इज कॉन्टिन्यूअस on close interval AB implies F is UC on close interval AB.
है ना। अब इस पे यूसी हो गया, एंड देन फॉर एनी पार्ट, एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर इज डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ टी माइनस एफ ऑफ टी प्राइम इज लेस देन फॉर ऑल टी माइनस टी प्राइम लेस देन डेल्टा, फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू इफ जो भी है क्लोज ए बी। ये होता है, हम जानते हैं। तो किन्हीं भी दो पॉइंट की डिस्टेंस अगर डेल्टा से कम हुई तो फंक्शनल वैल्यू डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। ये हमारे पास है, इसका इस्तेमाल करेंगे इस वाले के लिए। तो आप मुझे जब प्रूफ करने को बोलते हैं कि शो दैट दिस इज इंटीग्रेबल, शो दैट दिस इज इंटीग्रेबल, तो आप मुझे एप्सिलॉन देते हैं और मुझसे डेल्टा मांगते हैं। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस विच वी एग्री कि आप भी वही मानेंगे। आपके हर एप्सिलॉन मैंने डेल्टा दे दिया और आपसे कहा कि अगर अपना पार्टीशन का नॉर्म इससे कम रखोगे ना तो आपका यूपीएफ माइनस एलपीएफ या औसत सम एप्सिलॉन से लेस आएगा। अगर आपके हर एप्सिलॉन में डेल्टा दे पा रहा हूं, आपको मानना चाहिए वो रीमान इंटीग्रेबल है। ये तो है ना प्रोसेस। आपने मुझे एप्सिलॉन दिया, मैंने अभी वहां नहीं यूज किया, पहले उसको यहां यूज किया। उस एप्सिलॉन से मैंने क्या निकाल लिया? डेल्टा निकाल लिया। ये डेल्टा कौन सा वाला? यूसी वाला डेल्टा। ये इससे हम यूसी प्रूफ करते हैं। अब इस डेल्टा को देखा, फिर मैं क्लेम करने जा रहा हूं कि अगर इस पार्टीशन का नॉर्म इस डेल्टा से कम है, इस पार्टीशन नॉर्म इस डेल्टा से कम है, तो किसी भी सब इंटरवल की लेंथ इस डेल्टा से कम ही रहेगी। पक्का ना? अब कोई भी नाउ लेट एक्स आर माइनस 1 एक्स आर on this x minus xr, mr equal to f of tr, suppose say, and tr belongs to, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल x minus xr के ऊपर, सो अपने बाउंड्स अटेन करेगा। ऐसे स्मॉल mr f tr प्राइम होगा, कंफर्म। अब जैसे ये हुआ तो जो मेरा समेशन कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, ये जो ऑसिलेटरी सम था इस पार्टीशन पी पे, जिसका नॉर्म क्या है? लेस देन डेल्टा, और डेल्टा यहां से उठाया हमने। ये दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आर माइनस एफ ऑफ टी आर प्राइम, क्योंकि ये अटेन तो करेगा। एफ कंटिन्यूअस है हर सब इंटरवल पे, इसको हम एफ ले सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब जब कोई भी दो पॉइंट डिस्टेंस डेल्टा से कम होती है तो ये क्या हो जाता है? एप्सिलॉन लेस। जब नॉर्म पी भी लेस देन डेल्टा है तो टी आर और टी आर प्राइम की डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, तो ये क्या होगा? एप्सिलॉन लेस होगा। और सुंदर ये लगता है कि अगर हम बजाय एप्सिलॉन के ये चूज करते हैं, हर जगह क्या एप्सिलॉन बी माइनस एप्सिलॉन बी माइनस लिख देंगे, तो ये क्या जाएगा? क्या हो गया? द ऑसिलेटरी सम इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा। मिल गया? इसका मतलब अपर इंटीग्रल इक्वल्स लोअर इंटीग्रल, फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो अगर मोनोटोनिक हो तो आर इंटीग्रेबल, और अगर क्लोज इंटरवल ए बी पे कॉन्टिन्यूअस हो तो आर इंटीग्रेबल। सो हमारे जो 1 to 8 या 9 फंक्शन है, जो आर लिस्ट के फंक्शन है, वो किसी भी फाइनाइट लेंथ के क्लोज इंटरवल पे या किसी भी क्लोज इंटरवल पे हमेशा आर इंटीग्रेबल है। कुछ सोचने नहीं है उनके ऊपर। वो कितना भी कॉम्प्लेक्स बना हो, हम एम आर स्मॉल एम आर तो नहीं निकाल सकते, वैल्यू भी नहीं निकाल सकते, हो सकता हो, बट ये तो कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेबल है। ठीक है, कल हमने 4 रिजल्ट लिखे थे जो उनके लाइट प्रूफ देने की कोशिश करें, दिस आइडिया ऑफ प्रूफ किए ऐसे। वैसे तो और हर जगह लिखना पड़ेगा, इट इज यूसी फलाना दिमाग हर जगह, तभी तो प्रूफ करोगे आप। बट आइडिया इज क्लियर इनफ कि हमें ऐसे प्रूफ करना है यूजिंग यूनिफॉर्म क्वांटिटी, बाउंडेडनेस, अटेनमेंट ऑफ बाउंड्स, ये सब तो यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर। सो अगर तो इस प्रूफ से हम लोग एक चीज कह पाएंगे यहां पर, इस प्रूफ के बाद, कि जिस सेगमेंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है
उतने हिस्से का ऑसिलेटरी सम को जितना चाहो उतना कम कर सकते हो, इजंट इट? अगर क्लोज इंटरवल ए बी मुझे दिया था, मैं क्या करूं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूं, एसी और सीबी। दो पार्ट डिवाइड हो गए, एसी का एक पार्टीशन P1, सीबी का एक पार्टीशन P2। तो P1 यूनियन P2 विल बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ट्रू? कि जैसे यहां से थर्ड पे आएंगे, और उससे पहले ये चीज देखिए कि लेट P1 करस्पॉन्ड टू AC एंड P2 करस्पॉन्ड टू CB सपोज। सो P1 यूनियन P2 करस्पॉन्ड्स टू AB कह सकते हैं हम। अब अगर मेरा फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल AB पे डिफाइन बाउंडेड है, A से C के बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है, थ्रू आउट कंटिन्यूअस बिटवीन A एंड C, AC के बीच, और CB पे भी वो थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, C पे फेल कर रहा है। कैसे? यहां से उसकी लेफ्ट लिमिट मिल रही है, इसकी इक्वल नहीं है, तो यहां हम रीडिफाइन कर ले, उसे इक्वल डिफाइन करने फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे ही यहां पर अब आप चीज सोचिए, ये इसको मान लेते हैं, इसको भूल भी जाए, केवल यहां देखें सी पे लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल टू एफ सी है, तो कह सकता हूं कि यहां पर वो कंटिन्यूअस है, यहां पर सी पे फेल कर जाएगा। फिर सी पे राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट वैल्यू इक्वल अगर हो गई तो फिर पूरे सी में हो जाता हो, तो कहीं एक जगह तो अनइक्वल होगी नहीं होगी। सपोज इट इज क्वांटिटीज फ्रॉम लेफ्ट नॉट फ्रॉम राइट, इट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट नॉट फ्रॉम राइट, मींस व्हाट? लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट मे और मे नॉट एग्जिस्ट। यहां कंटिन्यूअस, मैं यहां यह कहूंगा कि देन द ऑसिलेटरी सम ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल एसी कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। तो अगर आप इसको रीमान इंटीग्रल प्रूफ करना चाहेंगे तो जो ऑसिलेटरी सम है एफ, इसको नाम दिया पी, एफ पी, इसको आप बांट दीजिए कैसे? ऑसिलेटरी सम एफ पी1 प्लस ऑसिलेटरी सम एफ पी2 ले सकते हैं ऐसे। समेशन ही तो है ना, दो पॉइंट डिवाइड कर सकते हैं। ओवरऑल समेशन है, यहां से यहां तक सम प्लस यहां से यहां तक सम, इनमें तो कॉमन कुछ है भी नहीं। एंड दिस इज, ये इसको जिससे भी चाहे उससे कम कर सकते हैं। अब इसका रिफाइन करते जाएंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 2 कर सकते हैं हम इसको। अब मैं ये शो कर दूं कि दिस इज ऑल्सो लेस देन 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे जहां जहां मुझे क्वांटिटी मिलती जाएगी उन सारे पार्ट्स को, ऑसिलेटरी सम को मैं एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन से रिप्लेस करता जाऊंगा। 4 पार्ट है तो मैं एप्सिलॉन 4 ध्यान रखूंगा, एप्सिलॉन 8 करूंगा तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा, बाकी समा दिखा देंगे। क्लियर है? ये इस टेक्निक का इस्तेमाल इसमें किया गया है, सेकंड जो हमारा है। अब वो देख लीजिए, लेट एफ is from closed interval AB to R bounded and F is continuous on AB minus S where S equal to A1 A2 या ठीक है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा K, ये पॉइंट्स। मतलब F is continuous except find many point, ये तो लिखा हमने। अब इसको क्या किया हमने, लेट अल्फा आई बिलोंग्स टू ZI प्राइम, कल किया था इस तरह से। अल्फा आई इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर एनक्लोज्ड इनटू डिसजॉइंट इंटरवल्स ZI प्राइम, ठीक है। और इनकी जो लेंथ है वो अपनी मर्जी से हम जितनी चाहें उतनी कम कर सकते हैं। ये अल्फा 1 दिस, ये अल्फा 2 दिस एंड सो ऑन अल्फा के दिस। Z1 प्राइम, Z2 प्राइम, Z के प्राइम, एंड देन समेशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर कैन बी रिटन एज, अब ये देखिएगा, समेशन एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा वाई आर प्लस समेशन स्मॉल एम आर
दिस यहां पे प्राइम लगा देते हैं, ये तो नोटेशन सेम ही रखें, क्या दिक्कत है, डेल्टा जेड आर, हर कोई अपने अपने करस्पॉन्डिंग इंटरवल में इनफिनिटी। ये वो हिस्सा जो बाहर बाहर का कहीं का है, उसका कोई भी पार्टीशन, ये वो वाले जो हमने यहां एनक्लोज कर दिए, तो एनक्लोज से अलग कर लिया और बाहर जो बचा उसका कोई पार्टीशन ले लीजिए आप, कोई फर्क पड़ता। डन। सो वेन एवर वी हैव एनी पार्टीशन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ, वी फर्स्ट रिमूव दिस एंड रिमेनिंग पार्टीशन सेपरेट and union this partition. So it is a partition of the whole closed interval AB. Here y1 y2 y2 y3 or y0 y1, they don't contain any point of discontinuity because the point of discontinuity are enclosed here. So here function is what? Continuous. And in any segment if it is continuous, that oscillating sum can be made as small as you please. So this can be, और हमें यह भी तो पता है कि समेशन डेल्टा एक्स आर यहां से दिस इज, अच्छा ये लेस देन, इसको तो कर सकता हूं मैं, अब यहां पर एम आर ग्लोबल सुप्रीमम जो होगा फंक्शन उससे तो छोटा ही होगा या बराबर ही हो सकता है, अभी भी ट्रू है कि नहीं है, इसको ग्लोबल सुप्रीमम से रिप्लेस करे तो और बड़ा हो गया, इसको ग्लोबल इन्फीमम से करे तो और बड़ा हो गया वो, ठीक है, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 प्लस m माइनस स्मॉल m और डेल्टा जेड आर। आपको यह भी याद है कि दिस सम कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज, कर देते एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ m माइनस स्मॉल m, एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ये क्या बन जाएगा, कब, when summation delta z r is less than epsilon upon twice, ये तो हमारे हाथ में है ना, डिस्जॉइंट इंटरवल को जितनी छोटी लेंथ में चाहे हम क्लोज कर सकते हैं, तो क्या प्रूफ हो गया, if the set of this quantity is finite then also the oscillatory sum can be made as small as we please, है ना, समझ रहे मेरी बात ना। अच्छा इस प्रूफ में और यहां अगर मैं क्या करूं, इस फाइनाइट की जगह काउंटेबली इनफाइनाइट कर दूं, तब भी तो वही बात हो सकती है ना कि दिस और दिस जो पॉइंट्स हैं उनको एनक्लोज कर लिया आपने, पॉइंट्स उनको एनक्लोज कर लिया, अब बाहर कुछ बचा है नहीं बचा उसकी हेडेक है। ये वाला हिस्सा हमारा जो है इसकी लेंथ एप्सिलॉन अपॉन 2, एप्सिलॉन बाय 2 स्क्वायर, एप्सिलॉन बाय 2 क्यूब एंड सो ऑन, और सब में कैपिटल M माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारा बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ m इंटू m माइनस 1, तो m से m कैंसिल हो जाएगा सारा, तब भी प्रूफ हो गया। सिमिलरली जो थर्ड था ये फोर्थ भी आप कह सकते हो, तो पहला मोनोटोनिक, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे में फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और चौथे में काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड यू हैव आइडिया हाउ। पक्का ना बने उसके अंदर पॉइंट आने दो, हमें क्या टेंशन है, दूसरे पॉइंट भी आ रहे दो, बट उनकी लेंथ तो जितनी चाहे उतनी कम कर सकते ही नहीं कर सकते हैं, तो अब बाहर बचे ना बचे क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं बचा तो वैसे ही जीरो है, उसके सामने तुम कितना चाहे उतना कम कर ही सकते हैं। हाँ एन टेंसिटी पे नॉन पी जीरो हो जाएगा। हाँ ना ना ना, यहां पर जब हम पार्टीशन ले रहे हैं ना, तो यहां अभी तो एक पार्टीशन लिया ना हमने, यहां तो कुछ भी दिस कैन बी मेड एज स्मॉल, तो इस हिस्से का जो बाहर बचा है उसका कोई पार्टीशन ले लेंगे। अगर ये मेरा यहां पर रीमान इंटीग्रल है ना, क्योंकि कंटीन्यूअस हो गया, तो एक डेल्टा मिलेगा उस एप्सिलॉन के लिए, तो वो डेल्टा ले लिया हमने यहां पर डेल्टा 1, यहां पर कोई जो डिस्टेंस आ रही है इसके डेल्टा 2 मिल रहा है ना, जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं, दोनों का मिनिमम ले लो, तो वो डेल्टा और P1 यूनियन P2 ले लो, तो ये पार्टीशन इसके बाद हमेशा आना शुरू हो जाएगा, isn't it? P1 के लिए डेल्टा 1, P2 के लिए डेल्टा 2, P1 यूनियन P2 इज माई दिस
पार्टीशन एंड टेक मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, वो नॉर्म दे देगा। उससे कम पे तो हमेशा होने वाला कि उस पे अब हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी मिनिमम हमारा होगा डेल्टा 1 डेल्टा 2 का, तो दोनों जगह होल्ड कर जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे यहां भी होल्ड कर गया और वहां भी होल्ड कर गया, ये डेल्टा 1 के लिए हमेशा होल्ड कर रहा है और वो डेल्टा 2 के लिए हमेशा होल्ड कर रहा है। मैं ऐसा डेल्टा चूज करूं जो मिनिमम हो दोनों का, उससे लेस होगा तो डेल्टा 1 से भी लेस होगा और डेल्टा 2 से भी लेस होगा, तो ये भी लेस देन फलन और वो भी लेस देन फलन, या 2। और जब इनफाइनाइट होंगे ना जब इनफाइनाइट होंगे बट काउंटेबल इनफाइनाइट होंगे, तो हम अगर ये कर रहे हैं यहां से यहां पर, ये है, ये ऐसे कर लिया आपने, हम इनको तो जितना चाहे उतना कम कर ही सकते हैं ना उस एक पॉइंट को। तो ये हम चाहे तो एस लेस एज वी प्लीज। अब बाहर ये है, अगर बाहर है वहां पर, ये तो तय हो गया बाहर पॉइंट नहीं है, इसको जितना चाहे उतना कम कर सकता हूं, ये भी कंफर्म हो गया। अगर बाहर नहीं है तो वैसे ही है वो, और बाहर अगर कुछ बचा है तो उसको तो कंटिन्यूअसली होना चाहिए वहां पर, तो हम लेस कर सकते हैं। इन बोथ वे इट इज ट्रू ना। उसने यही किया ना, थर्ड जो उसने दिखाया ना कि एस प्राइम इज काउंटेबल, जब इसने कहा एस प्राइम इज फाइनाइट, ये प्रूफ किया एस प्राइम इज फाइनाइट, ठीक ना। इसको प्रूफ कर समय ये ए ये बी, एस प्राइम इज फाइनाइट, ठीक है। अब मेरा एस काउंट इनफाइनाइट हो जाए और एस प्राइम फाइनाइट हो जाए, तो बजाय मुझे ये काउंटेबल प्रूफ करने के ये प्रूफ करना चाहिए एस प्राइम इज फाइनाइट, मैं ये प्रूफ करूं एस प्राइम इज फाइनाइट, मतलब इंप्लाई तो कर रहा है एस काउंटेबल हो। अगर एस प्राइम एम्प्टी है तो एस काउंटेबल दोनों केस में इनफाइनाइट तब भी हो सकता है ना। तो ये रिजल्ट जो दे रहा है हमने प्रूफ किसके लिए कर लिया, फाइनाइट सेट के लिए प्रूफ कर लिया। अब आते हैं कि इनफाइनाइट सेट है अगर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी के, तो क्या होगा। तो मैं देख रहा हूं कि एस प्राइम अगर मेरा काउंटेबल हो, एक तो तरीका बता रहा हूं कि ऐसे आप क्लब कर लीजिए इसको, तो ये मेरा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, ये क्या है मेरे लिमिट पॉइंट एस के। एस में कितने मेंबर है, इनफाइनाइट। मैंने इनको एनक्लोज कर लिया इनको एनक्लोज, ये लिमिट पॉइंट एनक्लोज हुए। इसके अंदर एस के कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट। इसके अंदर एस के कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट। जैसे वहां रैशनल ढूंढ रहे थे तो वहां भी इनफाइनाइट आ रहे थे, कोई भी आफत फिर भी नहीं है। बट इसके बाहर भी तो मेंबर है एस के, बट अब बाहर कितने मेंबर हैं, फाइनाइट। क्यों, इन सब के यूनियन को लीजिए और उसके बाहर देखिए एस के कितने मेंबर हैं, क्योंकि एस के पास इससे लिमिट पॉइंट तो नहीं है। के इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर लिमिट पॉइंट्स। नाउ दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, it excludes only finite members of S by B and W, क्योंकि S के मेंबर A और B के बीच में है। अगर इनके बाहर S के इनफाइनाइट मेंबर हो गए, बाहर S का एक इनफाइनाइट सबसेट आ गया, तो उस इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट और हो जाएगा। तो K+1, जबकि आप क्या लेके चल रहे हो, K मैक्सिमम, तो बाहर कितना होना चाहिए, फाइनाइट। अब दो पार्ट डिवाइड कर लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। मैंने पहले ये प्रूफ कर लिया फाइनाइट सेट के लिए, और एक ये वाला कर लिया और एक ये वाला कर लिया, डन। इस केस में हम यहां पर कह रहे हैं यहां वो क्या होगा, अब यहां पर आए तो ये वाला कौन सा है, इधर वाला, तो यहां कितनी पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है, फाइनाइट। यहां फाइनाइट, बाकी फाइनाइट है। तो बाय प्रीवियस रिजल्ट दिस कैन बी मेड एज स्मॉल एज यू प्लीज, और ये तो हम कर ही सकते हैं। सो इफ एस प्राइम इज फाइनाइट देन ऑल्सो इंटीग्रेबल, एस प्राइम इज फाइनाइट देन ऑल्सो इंटीग्रेबल। काउंटेबल वाले में यहां पर अगर एस प्राइम काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए एस प्राइम, तभी वो रिजल्ट काम आ जाएगा। चाहे एस प्राइम काउंटेबली इनफाइनाइट हो या काउंटेबल हो, दोनों केस में हमारा ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो कंटिन्यूअस, इवन फेल टू बी, फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट, और एस प्राइम मेरा इनफाइनाइट आ जाए बट काउंटेबल हो जाए तब भी। अच्छा, एक केस और हो सकता है कि एस प्राइम अनकाउंटेबल हो जाए, एस प्राइम अनकाउंटेबल हो जाए तो भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा। रिमेंबर, इन रिजल्ट्स में से कन्वर्स कहीं नहीं जा रहे हम लोग। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो भी इंटीग्रेबल है ना, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है तो भी इंटीग्रेबल है, काउंटेबली इनफाइनाइट है तो भी इंटीग्रेबल है। अब बचा अनकाउंटेबल। ऐसा क्या होता है कि जब अनकाउंटेबल होगा तो नहीं होगा, तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि एस प्राइम अनकाउंटेबल हो या एस अनकाउंटेबल हो तो फंक्शन इंटीग्रेबल ना हो। चाहो तो नोट लगा लो लास्ट में, क्वेश्चन एज इट इज मिलता है इसके ऊपर।
f from close interval AB to R S from close interval AB to R, and S is a subset of A cross this, and F is continuous on AB minus S. On AB माइनस S. तो अभी हमने ये तो प्रूफ कर लिया कि S एम्प्टी, S फाइनाइट, S जो 5 रिजल्ट हो तो सारे प्रूफ हो गए, सब में दिख रहा है. तो नोट वाली बात है कि देयर आर F such that F belongs to RAB even if 1 S is uncountable, S prime is uncountable, S is uncountable. ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर S और S प्राइम दोनों अनकाउंटेबल हैं, उसके बाद भी फंक्शन मेरे इंटीग्रेबल है. तो ये कभी मत करना कि जब सेट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आपकी अनकाउंटेबल आ जाए और कह दो कि फिर वो इंटीग्रेबल नहीं है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. फंक्शन कैसा उस पर डिपेंड करेगा. ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं जो हमने लिखी है ना, ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं, नेसेसरी नहीं है कि नहीं भाई काउंटेबल ही होना चाहिए. एक फंक्शन बना लो 0-1 इंटरवल पे, कैंटर सेट याद होगा आपको. ओपन तो 0-1 की जो लेंथ है 1 और जो रिमूव लेंथ है 1 वो इक्वली आ रही है वहां पर. तो फंक्शन डिफाइन करो 1 इफ इट बिलोंग्स टू कैंटर सेट एल्स 0. फंक्शन तो क्लोज इंटरवल 0-1 पे डिफाइन कर दो, क्लोज इंटरवल 0-1 पे. ठीक है, और उसके बाद क्या करो, कैंटर सेट को वैल्यू दे दो उसको 1. I think this is the same function which I am calling 1 or 0 else. इसका सोचना, इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा, इसका इंटीग्रल 0 आ जाएगा. यहां तो पूरा 0 है ही, फिर यहां भी जहां जहां उसका जो यहां 0 है पूरा, बट 1 वैल्यू कहां आएगी, इसके अंदर कहीं 1 वैल्यू है. जो जो हटाते जा रहे हैं, ये हटा दिया फिर ये हटा दिया, इस तरह से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी. बट पॉइंट इस फंक्शन को देखो एज अ फंक्शन कि जब जब कैंटर सेट आता है वैल्यू आ जाती है 1, अदरवाइज वैल्यू क्या है इसकी 0. तो फंक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं 0 एक्सेप्ट ऑन कैंटर सेट. तो फाइंड पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या है इसके, कैंटर सेट. कहां डिस्कंटिन्यूस होगा ये, कैंटर सेट के ऊपर. और कहीं तो बाकी जो 0 है ना, केवल कैंटर सेट डिस्कंटिन्यूस होगा, ये केवल कैंटर सेट डिस्कंटिन्यूस है. और जबकि वो अनकाउंटेबल सेट है, उसके बाद भी ये मेरा इंटीग्रेबल है. और दूसरा f ऑफ x इक्वल टू पॉपकॉर्न ले लीजिए. ये कहां नहीं है कंटिन्यूअस, दिस इज S, दिस इज S प्राइम. अनकाउंटेबल. व्हाट इज S? C अनकाउंटेबल, बट फंक्शन आर रीमान इंटीग्रेबल. फंक्शन आर रीमान इंटीग्रेबल. ये इसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा दिया आपको.
तो ये तो समझ में आ गया ना कौन कौन से फंक्शन रीमान टेबल हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। साइन एक्स रीमान टेबल है किसी भी इंटरवल पे फाइंड लेंथ के, क्लोज इंटरवल ऑफ कोर्स। कॉस एक्स, अंपायर साहब, हमारे अंपायर साहब उनसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। आप बताओ, मुझे भी कभी भी आउट बोल सकता है ये, ठीक है। समेशन साइन एक्स आर, देखिएगा साइन एक्स ले लिया मैंने 0 to 1 साइन एक्स, ये इट इज कंटिन्यूअस। सी नाउ द प्रॉब्लम इज समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, एक्चुअली ये निकालना पड़ जाए समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, अगर ये निकालना पड़ जाए इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि ये इंटीग्रेबल है, 12th में इंटीग्रल सीख के आए हैं, तो उसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या आएगी, अल्टीमेटली इंटीग्रल ही आएगी, तो हम इंटीग्रल करके निकाल लेंगे। अगर वो मुझे कहता है कि जैसे ये है हमारा 0 to π/2, 0 to π/2 या π/4 और ये r पूरा ले लेते, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बाउंडेड हमारा फंक्शन है तो। हाँ, इससे तब फर्क पड़ जाएगा जब फंक्शन ना बताए और इसको बाउंडेड लेंथ का दे दे, तो फंक्शन अपने आप बाउंड हो जाएगा क्योंकि रेंज उसके बाहर जानी नहीं है। जब फंक्शन लिख रहे हो तो यहां कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी r, फर्क नहीं पड़ता कि ये से ये लिख लिया साइन एक्स, ठीक है, ये है ना बाउंडेड। इसमें ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है फंक्शन, चाहे कंटिन्यूअस से बोलो चाहे मोनोटोनिक से बोलो, फंक्शन इंटीग्रेबल हो गया। ये पार्टीशन x0 x1, ये हाइट मैक्सिमम x2, तो हर सब इंटरवल में एफ एक्स आर इज कैपिटल एम आर और एफ एक्स आर माइनस 1 स्मॉल एम आर। सो समेशन एम आर डेल्टा एक्स आर क्या होगा, समेशन साइन एक्स आर डेल्टा एक्स आर, और समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर क्या हो जाएगा, साइन एक्स आर माइनस 1 डेल्टा एक्स आर। अब ये लिखा मिल जाए, इसकी वजह से इस वक्त कहीं भी ये लिखा मिल जाए इतना, when norm p tend to 0 this tends to a to जो भी 0 to π/4 sin x dx, क्योंकि sin x मेरा इंटीग्रेबल है और ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 0 to π/4 sin x dx। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फंक्शन जो है कंफर्म, तो इसकी हेल्प से एक दो रिजल्ट बनाते हैं आपको, ठीक है, यहां तक तो। नाउ results and properties of integrability। results and properties, नंबर 1 डिफाइन भी कर चलेंगे इसमें ऐसे ही, इंटीग्रल डिफाइन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जो जो बेसिक रिजल्ट होते हैं वो लिख लेते हैं। नंबर 1, if f and g belongs to RAB, then a alpha f plus beta g belongs to RAB, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर all alpha beta belongs to R, means set of all Riemann integrable functions on any closed interval AB form a vector space। नॉन FDVS वेक्टर स्पेस बनाते हैं, नॉन FGVS वेक्टर स्पेस बनाते हैं, समझे। B F स्क्वायर और G स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब कंपोजिशन नहीं है, ये एफ एक्स इंटू एफ एक्स है, प्रोडक्ट बट खुद के साथ, और सी अलग कि एफ एक्स एफ इंटू जी, एफ इंटू जी का तो ये आ जाएगा,
अब f इक्वल टू जी कर दो, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अगर ये पहले प्रूफ किया आपने ये पहले प्रूफ किया तो इससे आप ये निकाल सकते हो। लेकिन आपने ये पहले प्रूफ किया तो उससे भी ये निकाल सकते हो। कैसे? कह देंगे जब इक्वल नहीं होगा तो पहले ये प्रूफ किया, जब इक्वल नहीं होगा ये प्रूफ करोगे तो इसके निकाले कुछ और। ये जैसे आपने प्रूफ कर लिया तो ये अपने आप आ जाएगा पुटिंग एफ इक्वल टू जी। बट ये जब प्रूफ करो ये अलग से प्रूफ हो जाता है। इन सब में क्या है कि जो m और सुप्रीम, जैसे इसमें m1 कैपिटल m1 और कैपिटल m2, तो अल्फा m1 और अल्फा बीटा m2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसका फायदा होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव लेके ये जो आता है ना m स्क्वायर माइनस स्मॉल m स्क्वायर, ये डेल्टा XR, इसे प्रूफ करना कई बार आसान हो जाता है कि अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, दो नेगेटिव, 3-4 केस लेके तो ये mr स्क्वायर स्मॉल mr स्क्वायर डेल्टा XR ये बना, और ये समेशन mr प्लस स्मॉल mr और ऐसे, और दिस इज लेस देन m प्लस स्मॉल m कैप सुप्रीमम। ये देखो दिस, और इसको हम जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं क्योंकि f इंटीग्रेबल है, तो अब एप्सिलॉन अपॉन m माइनस m, तो आसान हो गया। यहां पर ये नहीं कर सकते इसको एप्सिलॉन अपॉन, और सुंदर लो ट्वाइस m, अब तो और हो गया ना। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2m, सो डन। अच्छा ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम अल्फा f प्लस बीटा जी मतलब f प्लस जी f माइनस जी, तो सिंपल इनफ सेपरेट करना है केवल। जब ये प्रूफ हो गया तो f प्लस जी इंटीग्रेबल है, ये प्रूफ कर लिया हमने। इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल है, f माइनस जी इंटीग्रेबल है तो इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल है, और यहां माइनस कर दिया बाई 4 कर दिया, तो ये क्या हो गया f इंटू जी। तो वाइस वर्सा आप कहीं से भी जा सकते हो, बट प्रूफ के मेथड अलग होंगे। ठीक है, सी डी मॉड f मॉड जी आर, दिस बिलोंग्स टू आर ए बी। अलजेब्रा, एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर्टी हम अलजेब्रा लिख रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। अगर f इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड भी इंटीग्रेबल है, नॉट कन्वर्सली। स्क्वायर का भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। डिक्ले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। डिक्ले फंक्शन 1 माइनस 1 मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हो गया इंटीग्रल, कांस्टेंट आ गया, बट वैसे तो नहीं है ना। और यहां पर वही मॉड m से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। आपको पता है मॉड m माइनस स्मॉल मॉड m इज लेस देन, सेपरेटली कर देते हैं उसको, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा वो। E मैक्सिमम, अच्छा f अपॉन जी, f अपॉन जी प्रोवाइडेड डिफाइंड ना डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। केवल जी जीरो नहीं होने से काम नहीं चलेगा। आप f ऑफ x इक्वल टू 1, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0-1 है रीमान इंटीग्रेबल? हाँ, कांस्टेंट फंक्शन gx इक्वल टू x when x belongs to open interval 0-1 and 1 when x equal to 0 and 1, ये भी रीमान इंटीग्रेबल है। कंटिन्यूअस फंक्शन ओनली 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक ही पॉइंट 1 पे तो है भी नहीं, क्लोज तो 0 में डिफाइन हो गया, और g की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। अब f अपॉन जी क्या आ गया 1 अपॉन x, कब, जब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0-1 और 1 व्हेन x इक्वल 0 और 1, डिफाइन हो गया पूरे क्लोज 0-1 पे, और ये कभी 0 भी नहीं है, बट इसके बाद भी इंटीग्रल की बाउंडेड नहीं है। अब 1 अपॉन n पुट करो, इसमें n आ जाएगा ना, ये डिफाइन तो हो गया सब जगह ना, लेकिन बाउंडेड नहीं आया। तो केवल डिफाइन होने भर से या नॉन जीरो होने भर से डिनोमिनेटर के कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं हो जाता, आपको बाउंडेड क्लेम करना पड़ता है। तो इसलिए वहां पे लिखा है डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मत हाँ, कौन सा कंटीन्यूअस हो गया 1 अपॉन x, ओपन इंटरवल कंटीन्यूअस हुआ है, ठीक है, बट अनबाउंडेड भी तो हो गया। रीमान इंटीग्रेबिलिटी कब शुरू होती है, लेट f इज डिफाइंड एंड बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन ऑल द कंडीशंस रिक्वायर्ड। बाउंडेड नहीं है ना, ठीक है।
कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे हुआ भी नहीं है। अगर कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल पे हो जाता तो कुछ नहीं कहना, तो फिर वैसे ही बाउंड होता हो, तो इट इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, ई एफ मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी एंड मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी आर दे बिलोंग्स टू आर ए बी। ये तो एग्जैक्टली वही है, एफ प्लस जी माइनस मॉड एफ माइनस जी अपॉन 2 और एफ माइनस उससे आ जाएगा, और वो ऊपर प्रूफ करके आए हैं आप लोग। ठीक है, ये पहला था। दूसरी कंडीशन, अब जो इंटीग्रेबिलिटी रिजल्ट्स हैं उसमें हम क्या क्या लिबर्टी मेरे पास, जैसे हमने फंक्शन इंटीग्रल में लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, इससे काम चल सकता है। दूसरा एफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस कैन बी रिटन एज इन पार्ट्स ए टू सी प्लस सी टू बी फॉर एनी सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। वो जो सामी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कितना पॉपुलर है कॉम्प्लेक्स में, भरपूर इस्तेमाल होता है इसका। एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स। वहां पे डी जेड पे भी मॉड लाना पड़ता है, अदरवाइज इक्वल टू मतलब नहीं आता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। यहां डी एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड लाने की जरूरत है नहीं, डी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, if f(x) is greater equal to 0 for all x belongs to closed interval ab and f belongs to closed interval ab, f belongs to rab, then a to b f(x) dx is greater equal to 0। जो फंक्शन नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमेशा नॉन नेगेटिव ही आएगा। ऑब्वियसली समेशन mr डेल्टा xr इसकी लिमिटिंग कंडीशन आती है, समेशन स्मॉल mr डेल्टा xr इसकी लिमिट अगर रिमाइंड दिया तो इन्हीं की लिमिट इक्वल तो आएगा। और अगर फंक्शन मेरा नॉन नेगेटिव है तो समेशन mr डेल्टा xr, सपोज दिस इज अल्फा एन, इट इज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कैन नॉट कन्वर्ज टू अ नेगेटिव रियल नंबर आइदर टू 0 or to a positive real number. The same is here, get equal to 0. And here this 5 is important. Star important. If f(x) is greater equal to 0, 1, f belongs to RAB 2, and a to b f(x) dx is 0, 3. Then fc equal to 0 for every point of continuity c. ठीक है, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रल 0 रखेगा और पॉजिटिव भी है तो हर उस पॉइंट पे उसको 0 होना पड़ेगा जहां जहां वो कॉन्टिन्यूस, दैट इज एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मस्ट वैनिश। एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी फंक्शन मस्ट वैनिश। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो नहीं है। मतलब अगर ये कहीं से प्रूफ कर लें, हम किसी भी तरीके से प्रूफ कर दिखाते हैं आपको क्वेश्चंस में, बिना कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किए और आपने इंटीग्रल 0 प्रूफ कर दिया और आपको मालूम है फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, फंक्शन नॉन नेगेटिव है, और बिना कॉन्टिन्यूटी ये सब इस्तेमाल किए बिल्कुल लोअर सम अपर सम इसकी हेल्प से प्रूफ कर दिया फंक्शन मेरा इंटीग्रल 0 है, तो आप एक क्लेम तो कर सकते हो कि जहां जहां वैल्यू नॉन 0 है वहां कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। डन, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं, फिर काउंटर एग्जांपल इसको यूज करते हैं किसी एग्जांपल में। वी आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। ये है, चलते लेट f इज कॉन्टिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू सी, देखते हैं क्या बताती है, एंड एफ सी इज नॉन जीरो इंप्लाइज एफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन मेरा कैसा है ना, अगर जीरो नहीं है तो ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। आप पढ़ के आए हो जब किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो और नॉन जीरो तो क्या होता है, एक नेबरहुड में थ्रू आउट वो पॉजिटिव होता है। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, एंड हेंस एफ, और साथ में, और ये जब प्रूफ किया था आपको याद होगा, जब ये प्रूफ किया था, मोर ओवर जो एफ एक्स लाइज बिटवीन, क्या प्रूफ किया था, 1/2 एफ सी और 3/2 एफ सी, ये तो प्रूफ किया था इस इंटरवल में, बिकॉज ये प्रूफ किया था। प्रूफ याद आया, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को क्या ले लिया था आपने, हाफ एफ सी, उससे प्रूफ किया तो यही आ गया था। तो इस पूरे इंटरवल में हाफ एफ सी से बड़ा और 3/2 एफ सी छोटा होगा। एंड नाउ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रल ए टू सी माइनस डेल्टा प्लस सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा प्लस सी प्लस डेल्टा टू बी लिख सकते हैं ऐसे हम, 3 पार्ट में, इक्वल टू अल्फा 1 प्लस सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा प्लस अल्फा 2 वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 आर पॉजिटिव बाय दिस प्रॉपर्टी। जब फंक्शन नॉन नेगेटिव होते हैं कहीं पर भी तो इंटीग्रल नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अल्फा 1 पॉजिटिव है अल्फा 2 पॉजिटिव है, तो अगर मैं अल्फा 1 अल्फा 2 को हटा दूं राइट साइड वाले को, सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ एक्स डी एक्स ले सकता है ऐसे, और एफ एक्स, इस पूरे इंटीग्रल में एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है वो रिप्लेस कर दो, तो ए बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली कर देते हैं, अब तो स्ट्रिक्टली हो गया यहां पर, हाफ एफ सी सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा डी एक्स, ठीक है, कंफर्म। ये आपको पता होगा, दिस इज ए टू बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्यों, बिना इंटीग्रल के बताओ, अभी तो इंटीग्रेट किया नहीं हमने, एम आर स्मॉल एम आर दोनों 1 है, ठीक है, तो समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आइज समेशन डेल्टा एक्स, और समेशन डेल्टा एक्स बी माइनस ए ऑलवेज, इट इज बी माइनस ए। तो ये क्या हुआ मेरा यहां पर 1/2 एफ सी, दिस माइनस दिस, डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बचेगा 2 डेल्टा, तो दिस क्या प्रूफ कर लिया हमने, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी इंटू डेल्टा, ये तो अनर्थ हो गया, एफ सी भी नॉन जीरो डेल्टा भी नॉन जीरो, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज वॉट, नॉन जीरो, और दिया क्या था, अर्थात ये मेरा जो कंटिन्यूअस है जहां पर, वहां पे नॉन जीरो वैल्यू लेना वो गलत हो गया, और क्वांटिटी का इस्तेमाल किया इस एस्टैब्लिशमेंट में, क्वांटिटी इस्तेमाल किया ना इस एस्टैब्लिशमेंट में कि ये चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा डेल्टा नेबर तो मिलेगा जहां पर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, इसकी हेल्प से हमने प्रूफ कर, फिर इंटीग्रल क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, आना इंटीग्रल जीरो है तो एक ही साथ हो सकती है, फिर एफ सी क्या होना चाहिए था, जीरो होना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया कि अगर कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रल जीरो होगा तो फंक्शन जगह जगह जीरो नॉन जीरो होता रहे, बट जहां जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां जीरो वैल्यू चाहिए, जहां डिसकॉन्टिन्यूअस वहां पे जीरो हो नॉन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जहां कॉन्टिन्यूअस है वहां जीरो चाहिए, है ना। ये बड़ी थ्योरम मानी जाती है इस सेगमेंट की, और इस थ्योरम मानी जाती है, और इसकी कॉलरी ये है कि f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड a to b f(x) स्क्वायर dx इक्वल टू 0 इंप्लाइज f इज आइडेंटिकली 0। ये डायरेक्ट रिजल्ट बन गया नहीं बन गया, f कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो f स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस होगा,